ملتان سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج، سرد ہواؤں سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ کل شام تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ ملتان شہر کا موسم ابر آلود، ہلکی بوندا باندی جاری، آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ نئے سال کی پہلی بارش سے درجہ حرارت کم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کل شام تک جاری رہے گا۔ رحیم یار خان میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، موسم سرد ہو گیا۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 7، زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ زراعت کے مطابق نارمل بارش سے گندم کی فصل کو فائدہ ہوگا۔ ادھر کوٹ میٹھن میں دیکھتے ہی دیکھتے ہلکا ٹھنڈا موسم اچانک سے مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج چھا گیا، یکبستہ ہوائیں چلنے لگی، جبکہ ہلکی بارش سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بوندا باندی کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ دوسری جانب عیسیٰ کھیل میں صبح سے بارش کا سلسلہ جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی۔ بارش سے جہاں موسمی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، وہیں فصلوں کی پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ جبکہ تحصیل پپلا کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کسانوں نے حالیہ بارشوں کے ہر ایک قطرے کو اپنی فصلوں کے لیے سونے کی جھڑی قرار دیا، جبکہ ماہرین کے مطابق بارش سے گرد و غبار، دھند کا خاتمہ ہوگا اور موسمی فصلات کو حد درجہ فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ گر گئے۔ لکڑ منڈی چوک، شاہ عباس کلا منڈی اور نیو شاہ شمس کالونی میں بجلی بند۔ کینٹ بامنجی چوک، عزیز ہوٹل، چنگی نمبر 22 پر بھی بجلی غائب۔ جیل موڑ، ممتاز آباد، کونی برج، دہلی گیٹ کے علاقے بھی اندھیرے میں ڈوب گئے۔ قاسم پور، ممتاز آباد، رنگیل پور، پیر کالونی، بلوچ چوک، مدینہ چوک میں بھی بجلی بند ہے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کے بعد ملتان کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ انڈر پاس سے سبزی منڈی سڑک پر بارش کا پانی جمع ہے۔ شہری کہتے ہیں چند منٹ کی بارش نے ملتان کو پانی میں ڈبو دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک سے۔ جی حسن ملک، کیا صورتحال ہے؟ جی، ملتان میں بارش کے بعد سے اگر حالات کی بات کی جائے تو حالات کافی زیادہ سنگین ملتان شہر کے نظر آ رہے ہیں۔ چوکوں چوراہوں پر پانی کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو انڈر پاس سے جو روڈ سبزی منڈی کی طرف جاتا ہے، وہ روڈ مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ بارش کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی ابتر رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہاں ٹریفک کا کافی رش تھا پہلے، ٹھیک ہے، روڈ بھی کافی خستہ حال کا شکار ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے یہ روڈ بارش کی وجہ سے اتنا پانی ہو گیا، ٹرکس وغیرہ کی وجہ سے ٹریفک حادثات بھی ہوتے تھے یہاں۔ تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ یہ روڈ جلد از جلد بنوایا جائے، اور خصوصی طور پر بس ٹرک وغیرہ کو اس روڈ پہ آنے اجازت نہ دی جائے، اجازت نہ دی جائے۔ بارش کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بارش کا سارا پانی کھڑا ہے، شہریوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ منڈی سبزی منڈی والوں نے بھی یہیں سے گزرنا ہے، ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ گلیوں میں پانی آتا ہے، گلیاں نیچی ہیں اور روڈ اونچی ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں بھی پانی آ رہا ہے۔ بارش سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کچھ ہی دیر کی بارش ہوئی تھی اور بڑی لمیٹڈ سے ٹائم کے لیے بارش تھی، لیکن اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو گیا، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ مس مینجمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس واسطہ کی مس مینجمنٹ ہے۔ اور باقی یہ روڈ میں باہر دیکھیں تو ادھر پانی نہیں ہے، سارا روڈ کا پانی بھی یہی نیچی سڑک ہے، کافی نیچی سڑک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے، بالکل یہی کچھ ہے۔ روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے اور اونچا کیا جائے، ٹریفک کا بھی، کہ ٹریفک کو، بڑی گاڑیوں کو الاؤ نہ کیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عام روٹین میں یہ روڈ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اب پانی جو کھڑا ہوا ہے بارش کا، اسے جلد از جلد نکاسی آپ کی جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بآسانی گزر سکیں، اور جو یہاں کے رہائش۔ بہت شکریہ حسن ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان، فتح پور، کوٹ ادو، لیا اور بھکر میں رم جھم سے سردی بڑھ گئی۔ باران رحمت سے جہاں دھند اور آلودگی میں کمی ہوئی، وہیں کاشتکاروں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ اس پر رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان میں بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ، باران رحمت سے شہریوں کے ساتھ کاشتکار بھی خوش، کہتے ہیں بارش سے گندم کی پیداوار بہتر ہوگی۔ ادھر فتح پور میں ابر رحمت سے کاشتکاروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، درخت سرسبز و شاداب اور کھیت لہلہاتے نظر آنے لگے۔ کسان کہتے ہیں کہ گندم کی فصل کے لیے یہ بارش سونے کی بوند سے کم نہیں ہے، بارش سے دھول مٹی اور اسموگ کا خاتمہ ہوگا، بیماریوں میں بھی کمی آئے گی۔ اللہ پاک کا یہ انعام ہے، یہ باران رحمت فصلوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایک بوند جو ہے وہ سونے کی بوند ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے موسم صاف ہوگا، فصلیں صاف ہوں گی، اور یہ اسموگ بھی کم ہوگی، بیماریاں کم ہوں گی۔
दूसरी जानिब कोट अदू में नए साल की पहली रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। किसानों का कहना है कि बारिश के सबब गंदम की फसल को फायदा पहुंचेगा और खांसी, नज़ला और जुकाम जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी। लिया में भी बादल बरस पड़े, बारिश से मौसम ठंडा हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिश से फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश से नज़ला, जुकाम और दीगर मौसमी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। जबकि भक्कर में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, धुंध और आलूदगी का खात्मा हो गया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश से फसलों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुल्तान में आटे का कोई बहरान नहीं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का दावा। मार्केट में सरकारी आटे की दस्तयाबी काफी हद तक बेहतर हो गई। दुकानों पर आम सारिफिन के लिए सरकारी निर्ख पर आटा दस्तयाब है। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए और 20 किलो का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है। इस पर फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सरकारी आटे का बहरान टल गया। मार्केट में आटे की दस्तयाबी काफी हद तक बेहतर हो गई। आम सार्फिन को दुकानों से सरकारी रेट पर आटा मिलने लगा। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए जबकि 20 किलो वाला थैला 1810 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जबकि शहरी सरकारी आटे का मयार का गिला करते नजर आते हैं। इनका कहना है कि सरकारी आटे का मयार अभी भी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। पहले सरकारी आटा नहीं था और उसका रेट भी यानी कि सही नहीं था, अब मिल रहा है सरकारी आटा। दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी आटे के पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां शहरियों के लिए सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है और पहले जो गैप आया था, शिकायत थी, वो अब महकमे ने अपनी तरतीब को ठीक किया। फिलर मिलों को मतलब इस बात पर पाबंद किया कि वो सरकारी रेट वाला आटा मार्केट के अंदर आम सार्फी के लिए जना मौजूद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जवेद ने शहर में आटा सेल पॉइंट और मुख्तलिफ दुकानों के दौरे और इंस्पेक्शन की। इनका कहना था कि मुल्तान में आटे का कोई बहरान नहीं, खुद साख्ता महंगाई करने वालों को भारी जुर्माने कर रहे हैं। अपनी डिमांड के मुताबिक कंप्लीट सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में और 40 से 50 हज़ार बैग डेली की बुनियाद पे मार्केट में सप्लाई हो रहा है, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटर भी किया जा रहा है और चेक भी किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं देखने में आई और ना ही आगे कोई एक्सपेक्टेड है कि कोई शॉर्टेज आएगी इस तरह की। सर मार्केट में सरकारी आटा 10 और 20 किलो की पैकिंग में मौजूद है, मगर प्राइवेट आटे का 15 किलो वाला थैला अभी भी 1900 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया आटे के निरखों को कंट्रोल करे ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। पहली मर्तबा सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख में नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से तजावुज कर गया, जबकि आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। मुल्तान से फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। मुल्की सराफा बाजारों में सोने की कीमत ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना पहली बार 5 लाख रुपए की हद अबूर कर गया, जिसके बाद खरीदारों और ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आलमी मार्केट में सोना $4830 फी औंस पर ट्रेड हुआ। जनरल सेक्रेटरी सराफा एसोसिएशन शेख खुरम शहजाद का कहना था कि डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और जियो पोलिटिकल तनाव के बाईस सरमायाकार सोने को महफूज सरमायाकारी समझ रहे हैं, इसलिए सोने का रेट बढ़ रहा है। इस वक्त जो ट्रेडिंग चल रही है वो $4830-35 फी औंस के हिसाब से गोल्ड सेल परचेज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो सामने नजर आ रहा है, अगर इसी तरह अगर मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ती गई दिन ब दिन, तो मुझे लगता है ये 6 लाख से भी तजावुज कर जाएगा। सुनार का कहना था कि सीजन के वक्त मार्केट में गाहक नहीं है। इस वक्त जेवरात की बजाय सिर्फ खालिद सोने की खरीदो फरोख्त हो रही है। इस टाइम आपके सामने सूरत हाल है, सोने का रेट इतना तेज हो चुका है कि मार्केट के अंदर सिर्फ सोने का लेन देन ही किया जा रहा है, बाकी उसके अलावा कोई खरीदार नहीं है, जेवरात के कोई खरीदार नहीं है। इतना महंगा रेट होने के बावजूद आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कोई खरीदने वाला नहीं है। ये तारीख में इस टाइम बहुत ज्यादा रेट हो चुका है। शहरियों का कहना था कि सोना महंगा होकर कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। पहले शादियों में सोना डाल देते थे, अब सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी देकर गुजारा कर रहे हैं। सोना तो हम बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। पहले था जो हम खरीद सकते थे, अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, सोना तो ख्वाब बन चुका है। अब तो बिल्कुल भी शादी ब्याह कोई भी यानी कि अब बिल्कुल भी नामुमकिन है। शादियों में ये चीज़ हम आर्टिफिशियली डाल सकते हैं, सोना हमारी पूंछ से बिल्कुल दूर है पड़ा। हम अब क्या कर सकते हैं, बात यह है कि हमारा ना कारोबार है, ना बात, ना चीज़,
ठीक है ना, चांदी का रेट भी इतना हो गया, सोने का रेट भी इतना हो गया। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा और मारूफ कारोबारी शख्सियत साद खुर्शीद कांजू का कहना था कि दुनिया में कारोबार सोना और डॉलर की सूरत में होता है। डॉलर गिरावट का शिकार है और सोना रोज बरोज महंगा हो रहा है। डॉलर मजीद गिरावट का शिकार हुआ तो आलमी माशियत मुतासिर होगी। हुकूमत की इस सूरत हाल पर नजर है। पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक की मईशत का जो है वो इससे गिर रही है। जो सोना है ये डॉलर के साथ जो है इसको किया जाता है करेंसी के तौर पे, और डॉलर जो है वो मुसलसल गिर रहा है, तो जिससे जो ममालिक डॉलर्स के साथ अपना मईशत में तजारत करते हैं उनके लिए ये खतरे की घड़ी है। किसी भी वक्त डॉलर जो है वो कोलैप्स कर सकता है और दुनिया की मईशत को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। सोने की तारीखी कीमत ने जहां सरमायाकारों और सट्टेबाजों को मुतवज्जा किया है, वहीं आम सारिफ और सुनार शदीद परेशान है। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। निश्तर अस्पताल में साल 2026 का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स का शिकार मरीज की उम्र 22 साल और उसका ताल्लुक खानेवाल की तहसील मियां चन्नू से है। मरीज के मजीद टेस्ट करने पर मंकी पॉक्स के साथ HIV एड्स भी मुस्बत आया है। गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के निश्तर अस्पताल में साल 2026 का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। निश्तर जराये के मुताबिक मंकी पॉक्स की तस्दीक एक 22 साल ख्वाजा सरा में हुई है, जिसका ताल्लुक खानेवाल की तहसील मियां चन्नू से बताया जा रहा है। मरीज के मजीद टेस्ट करने पर इसमें HIV एड्स की भी तस्दीक हो गई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा ख्वाजा सरा को स्पेशल ICU में आइसोलेट करके इलाज किया जा रहा है। इब्तदाई मेडिकल हिस्ट्री से पता चलता है कि मंकी पॉक्स जानवरों से मुंतकिल हुआ है। HIV की तस्दीक के बाद महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मरीज से राब्ते में आने वाले अफराद के टेस्ट करने का भी फैसला किया गया है। ये पेशेंट हमारे पास आया था खानेवाल से, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जिस वक्त जब मैंने उसको एडमिट किया और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो ही वाज फाउंड HIV पॉजिटिव, और जो इसके ब्लिस्टर पैटर्न था वो इट वाज सस्पेक्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स। इसके लिए फिर सैंपल्स हमने वगैरह इनको भेजे थे NIH में, उधर से इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है और पेशेंट वाइटली स्टेबल है। तकरीबन कोई 22 ईयर्स का है, ये ट्रांसजेंडर है बेसिकली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। बहावलनगर शहर में पीने के साफ पानी और जदीद सूरज निज़ाम की फराहमी के लिए वासा ने बाकायदा काम संभाल लिया है। इस हवाले से कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। बहावलनगर के आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मिशन। शहर में पीने के साफ पानी और जदीद सीवरेज निजाम की फराहमी के लिए वासा ने अपने काम का आगाज कर दिया। वासा ने शहर को 3 जोन्स में तकसीम किया है। हर जोन में असिस्टेंट डायरेक्टर को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है ताकि शहरियों को बर वक्त बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। वासा ने शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम कर दिया है, जहाँ मालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। एक्चुअली मैम साहबा का, CM साहबा का एक जो वादा था वो ऑब्वियसली पूरा हो गया है। इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग जो है हमारे मैंगल साहब हैं और हमारे DG साहब तैयब फरीद साहब और हमारे मिनिस्टर बिलावल यासीन साहब की तरफ से हमें बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों को वासा बनने के बाद जो है वो एक वाज़े फर्क भी नजर आना चाहिए और एक रिलीफ भी मिलना चाहिए। MD वासा का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बहावलनगर में वासा का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शहरियों को साफ पानी की फराहमी और फरसूदा सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहर का सीवरेज सिस्टम काफी अरसे से खस्ता हाल था, जिसे जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए भी ठोस और मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों की तरफ से मौसूल शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। बहावलनगर को 3 जोन के अंदर डिवाइड कर दिए, जोन A, B, C। इससे हर एक जोन के एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके नीचे सब इंजीनियर है, उसके नीचे सुपरवाइजर्स की और सीवर मैन की और वाटर सप्लाई ऑपरेटर, डिस्पोजल ऑपरेटर की टीम बना दी हुई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये इकदाम शहरियों के लिए सेहतमंद और बेहतर शहरी सहूलियात की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, हिरोही, बहावलनगर। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक बिजली के बेहंगम तारों के जाल खत्म न हो सके। राहगीर, मोटरसाइकिल सवार और दुकानदार हर वक्त किसी बड़े हादसे के खदशे में मुब्तला रहते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। नवा शहर मुल्तान के मेन बाजार में बिजली की तारें सर पर झूलने लगी। बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों और ताजरों के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना था कि मेन बाजार में हाई वोल्टेज तारें सरों पर उलझी हैं और जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती हैं। उल्टी सीधी तारें जा रही हैं, काफ़ी तारें बीच में टूटी हुई हैं, कोई पता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कभी कोई आके नहीं देखता कि भाई ये तारें किस तरह गुजर रही हैं, क्या हो रहा है।
उधर नौशहरा जदीद में पुल फारूकाबाद मेन चौक पर बिजली की लटकती तारें अवाम के लिए वबाले जान बन गईं। शहरियों का कहना है कि तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बारहा निशानदही के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ये तारें खास तौर पर बारिश के दौरान जानलेवा साबित हो सकती हैं। रिक्वेस्ट है ये जो इसको निकाला जाए। जब से ये लाइट आई है इधर से उसी टाइम से हम बता रहे हैं ये दरख्त नुकसान दे रहा है, अभी भी नुकसान है, इसको लिहाजा जल्द से जल्द निकाला जाए यहाँ से। अवामी तहफ्फुज़ के लिए इस संगीन मसले पर इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेते हुए लटकती तारों को दुरुस्त किया जाए।